Hello students, hope you are doing fine. So today I am here with you to discuss about more idioms and phrases. I have already taken a few sessions with you regarding idioms and phrases, how to learn them, go to the origin and try find out how it came in existence and making sentences so that you learn the phrases easily, rather you understand them instead of mugging up. So idea is how to keep idioms and phrase in your mind without mugging them up. So again I'll discuss a few phrases today with you. Let's see, the first phrase that we have in agenda today is, one is say. Damp squib is the phrase. The phrase is damp squib. What do you understand by the word, the phrase damp squib? Damp squib has the meaning, well, let me write the answer for you first, is not yielding the desired results. So that we know now that does not give you the result that you expect. That is what the case is, not yielding the desired result. Okay? तो डैम्प स्क्वेप हो जाता है, यानी जब जिससे आप उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होता, आप एक्सपेक्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन वो उस तरीके से निकल कर नहीं आता. नाउ व्हाट से इज कि मैं कैसे यूज़ करूं, पहले मैं समझ लेता हूं कि दिस एनीवे द पॉलिसी केम इन एग्जिस्टेंस, द गवर्नमेंट केम आउट विद लॉट ऑफ expectation that this policy will definitely produce some results, but ultimately what happens is after months, 2 months, 6 months or whatever, they find that this is not that fruitful, so that certain policy turned out to be a damp squib हो जाएगा. मीन्स वो उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं ला पा सका जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. दैट इज डैम्प स्क्विब है. ओके, नाउ व्हाई डैम्प स्क्विब, how it came into existence, that is what we need to understand. So damp, what do you mean by the word damp and what do you mean by the word squib? Squib is a cracker, okay, and damp is slightly moist, we say. Okay, so अब अगर आपका क्रैकर जो पटाखा है वो हल्का सा गीला हो जाए तो फिर वो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप उसे सोच रहे थे जितना आना चाहिए. तो यानी अगर इफ इट इज़ ए डैम्प स्क्विब, यानी इट विल नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट, तो डैम्प स्क्विब हो जाएगा. तो आई गेव यू द एग्जांपल, दिस पर्टिकुलर पॉलिसी दैट केम इन एग्जिस्टेंस, it has not yielded the desired results, so I will say this particular policy turned out to be a damp squib. Okay, that's what the case is. तो ये आप याद रखेंगे damp squib आया कहाँ से. दूसरा देखें, we say there is one phrase is as fit as fiddle. As fit as fiddle. What do you understand by the phrase as fit as fiddle? मैं पहले आंसर लिखता हूँ, फिर विल गो टू द ओरिजिन लेटर. एज फिट एज फिडल इज, वी से perfectly healthy. We say this is as fit as fiddle हो जाएगा, perfectly healthy होगा. ओके, तो मैं ऐसा बोलूँ कि the old man participating in the marathon was as fit as fiddle. That's the way it was used. ठीक है, सपोज वी केम टू यू, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हम सब फ्रेंड्स आए आपके पास, हमने कहा यार आप घर पे रहो, हम मूवी देखने जा रहे हैं. तो अब क्या हुआ, यार मैं भी ठीक हूँ, मैं भी चलता हूँ. तो देन यू कैन से आई एम एज फिट एज फिडल, आई कैन कम ऑल्सो विद यू. दैट्स व्हाट द केस इज, आई एम एज फिट एज फिडल हो जाता है. यानी जब आप ठीक होते हैं, फिट होते हैं फिजिकली, तब हम एज फिट एज फिडल यूज़ करते हैं. नाउ देख लें कि फिडल क्या है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि फिडल क्या होता है. फिडल जो है वो एक वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है. फिडल इज अ वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है. जैसे गिटार में 6 स्ट्रिंग्स हो जाते हैं, तो ये इसको हम वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है. हिंदू मैथोलॉजी में अगर आपने कभी देखा हो मूवीज में, तो वो एक तार होती है उसके अंदर. दिस इज ओनली वन स्ट्रिंग दे हैव. ओके, तो वन स्ट्रिंग वाला होता है. हिंदी में से एक तारा भी बोलते हैं, तो वन स्ट्रिंग वाला होता है. नाउ इफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज ओनली वन स्ट्रिंग इन इट,
Suppose this goes bad or it is loose, then how will you create the symphony that you desire? It means to play on it. Suppose you want to create some symphony, some music from it. It means this wire has to be perfectly all right. This ektara has to be perfectly all right. This fiddle has to be perfectly all right. Means if someone is as fit as fiddle, it means he is like this only, perfect है, as fit as fiddle होता है. तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, the old man participating in the marathon was as fit as fiddle. शायद आपको समझ आता है. ओके इसी के रिलेटेड एक और फ्रेज है, वो भी समझ लेते हैं. टू प्ले सेकेंड फिडल. टू प्ले सेकेंड फिडल. अब तो फिडल समझ ही आ गया था, प्ले सेकेंड फिडल है. तो ऑर्केस्ट्रा में क्या है कि मेन प्ले आप करेंगे, मैं आपके पीछे प्ले करूंगा. तो आई विल प्ले द सेकेंड फिडल. तो मैं ऐसे लिखूंगा टू प्ले अ subordinate role, I say like that. ठीक है, to play a less important role, I say like that. That is to play second fiddle होता है. ओके यानी पहले आप काम कर रहे हैं, मैं आपके पीछे हूं, शेडो में हूं. दैट्स व्हाट आई से इज आई प्ले सेकंड फिडल. व्हाट हैपन्स इज सपोज कोई अलायंस होता है, सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, तो वहां पर क्या कांग्रेस हैज गिवन सपोर्ट टू द एक्स गवर्नमेंट. सो व्हाट हैपन्स इज शिवसेना इज वर्किंग देयर. Now they are playing the main role there, but it is giving a support. Congress is giving a support to Shiv Sena. So what Congress is doing? Congress is basically playing the second fiddle in that particular case. Hope you understand. तो इस तरीके से आपको एक phrase मिल जाएगा to play second fiddle होता है. Okay? एक और देखते हैं. Phrase होती है on the rocks. When we say phrase क्या है? ऑन दी रॉक्स है. आपने मूवीज में शायद सुना हो, देखा हो, ऑन दी रॉक्स वो स्कॉच पी रहा होता है. वहां पर रॉक्स का मतलब वो आइस क्यूब्स हैं जो ग्लास में डालता है, उसके ऊपर वो लिकर डाल रहा होता है, फिर वो नीट पी रहा होता है. तो उसको वहाँ कह रहा होता है कि ऑन दी रॉक्स आई विल ड्रिंक. बट हेयर ऑन दी रॉक्स, दिस रॉक्स इज नॉट एज पर दैट रॉक्स जहाँ पर वो कंसिडरेशन में लिया हुआ है. वी से ऑन दी रॉक्स इज बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑन दी रॉक्स का मतलब है टू बी इन bad state. We say to be in bad state, we say on the rocks है. okay? क्यों भाई on the rocks है? मैं ऐसा बोलूँगा कि his marriage is on the rocks. Say like that. यानी बुरे हाल में चल रही है, कभी भी टूट सकती है, on the rocks होता है. तो अब लॉजिकली देखें तो टूट सकती है, बन सकती है, क्या हम इस तरीके से कर रहे हैं. तो यानी रॉक्स का टूटने से क्या लेना देना. तो हम यहाँ से लॉजिक ये लेते हैं कि ship basically is meant to move on waters. हाँ कि नहीं. अगर शिप जो है वो पानी पर चलने के लिए बना है, समुद्र में चलने के लिए बना है, ये कहने पानी पर चलेगा. अगर वो रॉक्स पर आ जाएगा देन व्हाट हैपन्स? डेफिनेटली इट विल डिवास्टेट, इट विल wreck. यानी इफ a ship comes on water, sorry, on rocks, it means it will devastate, it will get wrecked. तो वो खत्म हो जाएगा. इसका मतलब है कि वो बुरे हाल में आ जाएगा. सिमिलरली हम ये कह रहे हैं कि किसी की मैरिज, हमने बोला था हिज मैरिज इज ऑन द रॉक्स, तो फिर मतलब क्या हो गया? बैड शेप. अगर आपने याद है वो आपने एक पोम पढ़ी थी 12th क्लास में, आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स, तो उस केस में वो कहता है कि शी हैड ट्रबल इन मैरिड लाइफ एंड ऑल, तो हर मैरिज वाज ऑन द रॉक्स हो जाता है. तो सिमिलरली वी कैन से that economy in our country is on the rocks. Say like that. if example कि अगर वो थोड़ा स्लो चल रही है तो economist at times से इसकी यार बुरे हाल में चल रही है, तो they say our economy in our country is on the rocks. Then we use it like this only. Okay? Kindly note these many. So we discuss the phrase on the rocks. Now you know this. उसी के कॉरस्पेंडिंगली एक और फ्रेज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसको बोलते हैं इन द डोल ड्रम्स. इन द डोल ड्रम्स होता है. फ्रेज है इन द
doldrums, we say like that. What do you mean by the phrase in the doldrums? In the doldrums, अगर बस ये समझना ज़रूरी है कि doldrums है क्या. You know the equator, अर्थ का जो इक्वेटर 0 डिग्री है, 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज नोन एज doldrums. Okay, and our earth is tilted at 23.5 degrees, this thing. So now on this axis it is already tilted in 23.5, and this 5 degree north and 5 degree south, and because certain reasons that air pressure in this belt is very low, तो least air pressure होता है इस doldrums के ऊपर. यानी मैं अगर समझूं तो doldrums को मैंने कैसे यूज किया, वो मैं इक्वेटर से लेकर आया. When I say in the doldrums मीन्स मैं आंसर लिखता हूं इन लो स्पिरिट्स, इन लो स्पिरिट्स, वही जो भी हमने बात करी थी इन बैड शेप, याद है, कुछ कुछ वैसा ही. ये मैंने बोला कि ये आपका इक्वेटर का सेक्शन है, 0 डिग्री यहाँ है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो है ये आपका सेक्शन है. इस बेल्ट को हम बोल रहे हैं, this is known as doldrums. Here we have least air pressure. Now what happens? Once you have the least air pressure here, suppose a ship enters this particular region. पुराने ज़माने में शिप कैसे चलते थे, वो सेल से चलते थे, वो कपड़ा लगाकर. तो तब वो जनरेटर या टरबाइन तो होता नहीं था उनके पास, कोई ऐसा चला लेंगे कि जनरेटर से क्रिएट कर लेंगे बिजली और चला लेंगे. नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड. कोई मोटर से तो चलता नहीं था. इसका मतलब वो कपड़ा लगाकर, सेल लगाकर ही चलाते थे. तो इफ ए शिप ऑफ दैट काइंड एंटर्स दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर जोन, व्हाट हैपन्स, इट विल गेट स्टक देयर बिकॉज द रीजन वहाँ इतनी एयर तो होगी नहीं कि वो बाहर आ पाए, यानी उसको काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, ट्रबल हो सकती है, मूवमेंट उसकी काफ़ी स्लो हो सकती है, डेंजर भी हो सकती है. इफ इट मीन्स इफ समथिंग इज इन द डोल्ड्रम्स, इट मीन्स इट इज़ इन लो स्पिरिट्स हो जाता है. होप यू अंडरस्टैंड. तो वैसे ही मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमी का, जब हमने पहले स्टेटमेंट बोला था, ये वैसा से स्टेटमेंट हो गया कि इन द डोल्ड्रम्स इज समथिंग लाइक दिस ओनली, दैट इकोनॉमी इज इन द डोल्ड्रम्स, इकोनॉमी इज ऑन द रॉक्स. दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है. इन लो स्पिरिट्स है, इन बैड शेप है. ओके, दैट्स व्हाट द केस इज. डोल्ड्रम का ड्रम से कोई लेना देना नहीं है, ये आपने याद रखना है. डोल्ड्रम का इस रीजन से लेना देना है. ओके, एक और फ्रेज देखते हैं. पेंडोराज बॉक्स. पेंडोराज बॉक्स एक फ्रेज है. ओके, व्हेन यू से पेंडोराज बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज पेंडोराज बॉक्स? वैसे तो बॉक्स सोचें तो आपके दिमाग में क्या आता है? बॉक्स सोचने भी हो सकता है ट्रेजर आए, हो सकता है मिस्ट्री आए, हो सकता है मैजिक आए, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए रहते हैं एग्जाम में. व्हाट यू नीड टू से सी इज कि पेंडोराज बॉक्स का आंसर होता है अ कलेक्शन ऑफ इविल्स. मुश्किलों का पिटारा है. ठीक है, ये मुश्किलों का पिटारा है, यानी वो एक ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारी मुश्किलें हों, ऐसे वाली बात होती है, उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स. मीन्स इफ आई टेल यू, सपोज देयर इज ए न्यू प्रोजेक्ट इन द कंपनी, it says you come and join us in this project, you say यार I am not interested, it is a पेंडोराज बॉक्स. इट मीन्स व्हाट यू रियली इंटेंड टू से दैट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहेगी. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज अ पेंडोराज बॉक्स. इट मीन्स पेंडोराज बॉक्स वो है, ऐसा काम है जिसमें एक के बाद प्रॉब्लम आती रहे, उसे पेंडोराज बॉक्स कहते हैं. ओके, याद रहेगा. नाउ पेंडोराज बॉक्स आया कहाँ से, जो मैं हमेशा बार बार आपसे कहता हूँ कि यार समझो. तो पेंडोरा इज द डॉटर ऑफ ग्रीक गॉड. उनके जो सबसे बड़े भगवान है ज्यूस की बेटी है. शी इज द डॉटर ऑफ ग्रीक गॉड. उसकी जब शादी होने लगी तो certain other gods came or देवी देवता आए, and then they gifted her a box saying this, if you don't open this box for whole of your life after marriage, you will remain happy. So kindly don't open this box. They told this to her. So she brought that particular box and kept it aside somewhere. But after some time, out of curiosity, she wanted to see what is so great about this box. So she opened up the box,
and from the box certain weird creatures came out, and because of the creatures, all those weird creatures, we have disease in this world. All the ailments in the world have come from those creatures that came out from the Pandora's box. Means this Pandora box turned out to be a collection of evils. यानी जो बॉक्स उन्होंने उसे दिया शादी के टाइम पर कि तुझे नहीं खोलना, बट उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खोल लिया. उन्होंने कहा था कि नहीं खोलोगी तो तुम हमेशा खुश रहोगी. तो जब वो खुश थी तो उसे लगा, ऐसे ही कई बार आ जाता है कि हाँ आपको जो मना किया हो वो हम जरूर करते हैं, ऐसा भी लगता है. तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खोल लिया. फिर उसमें से जो क्रीचर्स निकले, जो वियर्ड क्रीचर्स, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैली, तो फिर ये टर्न आउट टू बी पंडोरास बॉक्स हो गया. ये कलेक्शन ऑफ ईविल्स हो गया. हम इसे बोलते हैं ये कलेक्शन ऑफ ईविल्स हो जाते हैं. ठीक है. और देखिए एक और देखिए, एक फ्रेज है Achilles heel. It's a good phrase. Achilles heel हम बोलते हैं. Achilles heel means, Achilles heel क्या होता है? Achilles heel होता है weak point of a person. ये Achilles heel है. weak point of a person, जिसे कमजोरी बोलते हैं. भी सपोज आपको चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, ठीक है, और मुझे आपसे कोई काम कराना हो, तो मुझे बताया कि आपसे काम कराने का तरीका यह है कि पहले आपको ल्योर कर लो, आपको चॉकलेट वॉकलेट दे दो, फिर आप मेरी बात मान ही जाओगे. इट मीन्स चॉकलेट इज योर एक्लीज हील. से लाइक दैट ओनली. वो एक्लीज हील हो गया, ये मेरी कमजोरी है. कई बार हम ऐसा कहते हैं तो वो एक्लीज हील हो जाता है. तो वीक पॉइंट ऑफ ए पर्सन बोलेंगे एक्लीज हील होता है. एंड देन वाई एक्लीज हील, ये भी समझ लेना ज़रूरी होता है. Being in mythologically, Greek mythology, we say Achilles was a warrior. When he was born, जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ को एक सेंट ने कहा कि आप इसे इस रिवर में डिप कर दो और उसे बाहर निकालोगे तो देन दिस चाइल्ड विल बी लाइक दिस, कि नो वेपन कैन द वर्ल्ड कैन हार्म हिम. तो माँ ने क्या किया, उस बच्चे को जो है वो रिवर में डिप किया और बाहर निकाला. अब डिप करने के लिए कहीं से तो पकड़ा ही होगा, तो हील से उसने पकड़ा था और डिप किया था. तो दैट हील रिमेन्ड फ्रिजाइल. वो वैसा नहीं हो पाया जैसे रेस्ट ऑफ द बॉडी थी. कहते हैं वॉर में जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था तो उसका दिस हील वाज आउट समवेयर आउट ऑफ द वाटर. समवन हिट द एरो एंड देन ही डाइड. तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ एक्लीज हील ऑफ दैट फेलो. तो वो एक्लीज हील में लग जाने के बाद वो मरा, तो वो बोलते हैं एक्लीज हील होता है. ठीक है, याद रहेगा. और देखते हैं, फ्रेज है माइंड योर P's and Q's. Mind your P's and Q's. ये हम कहना चाहते हैं. पहले मैं आंसर लिखता हूं. मेंटेन क्या, सोशल डेकोरम, एटिकेट वी से, दैट इज माइंड योर पीज एंड क्यूज होता है. यानी सपोज आई थ्रू ए कॉकटेल पार्टी एंड ऑल माई फ्रेंड्स हैव कम. टू बिगिन ए पार्टी आई वेलकम एवरीवन ऑन स्टेज फ्रॉम द स्टेज एंड देन आई से दैट वेलकम टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड ऑल, ये वो ऐसे वैसे. और फिर ये जरूर मैं कह दूंगा कि आई एक्सपेक्ट दैट यू वी ऑल मेंटेन पीज एंड क्यूज. मीन्स कि हम आउट नहीं होएंगे, कुछ मिसबिहेव नहीं करेंगे और नॉर्मल तरीके से रहेंगे. ये पीस एंड क्यूज होता है. तो पी का मतलब क्या है, और अब यहाँ से देखो तो दिमाग में आ जाए, तो पी का मतलब यहाँ पर प्लीज़ है और क्यू का मतलब थैंक यू है. आई बात समझ. तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉकटेल पार्टी में ये ना हो जाओ कि फिर तुम इस हालात में आ जाओ कि प्लीज़ और थैंक यू की स्टेज में ना रहो, फिर बाउंसर बुलाना पड़े. तो दिस व्हाट वी रिक्वेस्ट एवरीवन दैट यू मस्ट माइंड योर पीज एंड क्यूज. यानी पी मतलब अगर आप लॉजिक में दिमाग में आ जाए यार ये पी क्या है, तो फिर अगर आपको समझ आता है ना कि पी क्या है, तो फिर समझ लो बात बन गई कि पी मतलब प्लीज़ है एंड क्यू मतलब थैंक यू है. तो फिर आपको याद रहता है. ठीक है, नोट करिए ये सब.
चलिए तो आगे समझते हैं एक और फ्रेज। देखिए, बर्न वंस बोट्स, ये फ्रेज होती है। बर्न वंस बोट्स मीन्स क्या कहना चाहते हो? बर्न वंस बोट्स, बोट्स भी लिखा रहता है, कहीं भी आप देखेंगे तो वहां ये भी लिखा रहता है ब्रिजेस। बर्न वंस बोट्स एंड वंस वन ब्रिजेस भी लिखते हैं कई बार। तो इसका मतलब है टू क्लोज all the doors of escape, ये आप कहना चाहते हैं। मीन्स अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बची है, ये आप कहना चाहते हैं। लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, ये आप कहना चाह रहे हैं। बर्न वंस बोट्स हो जाता है, ठीक है। सपोज समवन हैज डन समथिंग लाइक दिस, जिसमें उसने सब कुछ पुट एवरीथिंग ऑन स्टेक, व्हाट हैपन्स? एंड सपोज इन सच ए स्टेज जहां पर उसे वो काम करना ही पड़े, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, तो मैं क्या बोलूंगा? यार, नाउ यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू हैव बर्न योर बोट्स। ओके, तो वी शुड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दिस काइंड वेयर वी बर्न अवर बोट्स। इसमें कुछ ये जो ऐसा हालात में आ जाना कि कोई और ऑप्शन ही ना बचे, तब हम बोल रहे हैं बर्न वंस बोट्स होता है, वंस ब्रिजेस हो जाता है। फिर अब ये देखे, दिमाग में आना चाहिए कि बोट कहाँ से आ गया और ब्रिज कहाँ से आ गया। तो ये देखिए कि पुराने ज़माने में जब वो वॉर होती थी तो वाटरवेज ही होता था। तो वन किंग यूज टू अटैक द अदर किंग, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो बोट से जाते थे, पीछे ब्रिज बना बना के जाते थे। जब वहाँ पहुँच गए तो व्हाट द कैप्टन और द किंग यूज टू डू इज कि जब वो वहाँ उस पर वहाँ पहुँच जाते थे तो दे यूज टू बर्न देयर बोट्स और दे यूज टू बर्न दी ब्रिजेस जिनसे वो वापस आए थे। वो बोट्स को बर्न करते थे जिससे वापस आए थे, ताकि उनके सैनिक वापस ना भाग सकें, ताकि वो पूरा एफर्ट करें। ओके, तो यू आर इन ए स्टेज जहाँ पर आप बर्न योर बोट्स है, इसका मतलब फिर उसको आपको पूरा एफर्ट करना ही पड़ेगा। जस्ट फॉर द केसेस, तो एट टाइम्स आई से इन ए वॉर ऑफ डू और डाई वन शुड डू बिफोर डाइंग। ये वैसा वाला है कि अगर आप बर्न बोट्स की स्टेज में आ जाओगे तो फिर आपके पास कुछ नहीं, कोशिश ही करने वाली बात आ जाती है, वो बर्न वंस बोट्स हो जाता है। दैट इज हाउ वी यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज, ठीक है। और देखिए, क्या? live up to its billing, we say live up to its billing। देखें, बिलिंग क्या? live up to its billing means to meet the desired expectations, we say live up to its billing, ऐसा बोलते हैं। यानी जितनी आपको उम्मीद थी उतने से, ठीक है। तो क्या बोलें कि सपोज आप मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि बिलिंग क्या होता है। यहाँ पर देखें बिलिंग क्या है। अगर आप ये बिलिंग देखोगे तो दिमाग में वो आता है, यार जो बिलिंग हम करवाते हैं, रेस्टोरेंट में गए, यू पेड द बिल, तो वो बिलिंग हो गई, ऐसा भी दिमाग में आ सकता है। बट हैव यू एवर सीन कि बिल्डिंग्स के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप लगी रहती है कि किसी बिल्डिंग के ऊपर, उस पर लिखा होता है स्टिक नो बिल्स। अब उस पर लिखा है स्टिक नो बिल्स, इसका मतलब वो बिल क्या है? वहां पर अगर आपने कभी देखा हो तो बिल्स का मतलब वहां पर फिर वो पोस्टर होता है। आप वहीं से एक वर्ड आया है, अगर आपको पता है तो, बिल बोर्ड्स। बिल बोर्ड्स वही तो हैं जो आपके होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स ही तो होते हैं। यानी बिल वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर पोस्टर। बिल नोट को भी कहते हैं, लेकिन बिल यहां पर पोस्टर के लिए यूज हो रहा है, तो बिल्स मतलब पोस्टर है। ओके, तो पुराने ज़माने में जब कोई पब्लिसिटी होती थी, जब ये एडवर्टाइजमेंट का दौर नहीं था और जब ये इंटरनेट नहीं था, तो कैसे होती थी? ऐसे ही होती थी कि वो पोस्टर बड़े बड़े बनते थे और उस पर लिखा रहता था कि मान लीजिए कोई मूवी आ गई, कोई प्ले आ गया, उसमें लिखा था द बेस्ट थ्रिलर सो फार, द मोस्ट एक्साइटिंग मूवी, ऐसे वैसे कुछ भी लिखा है। तो अगर उसमें लिखा है द बेस्ट थ्रिलर सो फार,
या जेम्स बॉन्ड की 007 मूवी है, उसमें लिखा द बेस्ट थ्रिलर सो फार। तो हम जब देखने जाते हैं तो हम क्या देखने जाते हैं? हमने तो उस पोस्टर को देखा था जिसमें बोला था कि थ्रिलर है। When I went and watched that movie and I found so it was really the same as I had expected by seeing the poster. तो जो पोस्टर ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी थी वो उम्मीदें मेरी वहाँ पर जाके पूरी हो जाती हैं। तो when I come out of movie I say यार the movie has lived up to its billing हो जाता है, यानी जैसा उसको पोस्टर में दिखाया था, जैसा उन्होंने हाइप जनरेट किया था, ये वैसा ही सच था, ये वहाँ पर बिलिंग आ जाता है। ठीक है। और ऐसे ही एक और फ्रेज देखिए, इसी से रिलेटेड है, वैसे टॉप बिलिंग होती है। जब आप किसी को टॉप बिलिंग कर देते हो तो क्या मतलब होता है? किसी को आप टॉप बिलिंग कर देते हो तो इसका मतलब हो जाता है कि प्रोमिनेंट एम्फसिस हो जाता है, या टू गिव द हाई रिगार्ड हो जाता है, से लाइक दैट, प्रोमिनेंट एम्फसिस हो जाता है, टॉप बिलिंग होती है। अब बोलोगे टॉप बिलिंग क्या? और टॉप बिलिंग का मतलब भी है कि अगर टॉप बिलिंग है तो वो जो पोस्टर बनाया था ना, देखो मेरी बात सुन, जो पोस्टर हमने बनाया था ये, तो जब हमने पोस्टर में यहाँ 007 लिखा था और ये गन दिखा दी थी और यहाँ 007 लिख दिया था, यहाँ जेम्स बॉन्ड लिख दिया था ना हमने, यहाँ शाहरुख खान लिख दिया था, यहाँ अमिताभ बच्चन लिख दिया था। आप मूवी किसके नाम पर देखने गए? जेम्स बॉन्ड के नाम पर। आधी मूवी का तो हमें नाम भी याद नहीं कि कौन सी थी, बट हाँ जेम्स बॉन्ड याद है, अमिताभ बच्चन याद है, शाहरुख खान याद है। इट मीन्स वॉट? You have given top billing to Shahrukh Khan, you have given top billing to Amitabh Bachchan. Say like this कि आपने इस पोस्टर के ऊपर सबसे ऊपर उसका नाम लिखा है, मूवी का नाम नीचे आ रहा है, तो what you have done is you have given top billing to Amitabh Bachchan here, means you have given him the maximum emphasis on that particular poster, यानी you attract the person by that only. Okay, तो किसी भी उस पर्टिकुलर उसमें इवेंट में या पर्टिकुलर किसी इस तरीके के पोस्टर में आपने टॉप बिलिंग दिया है, मतलब उसको मैक्सिमम एम्फेसिस दिया है, उसको आपने टॉप रिगार्ड दिया है। ओके, दिस वे वी नीड टू लर्न फ्रेजेस। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस few phrases with you. Kindly keep revising them, and whenever you come across a phrase, just for a second think कि इसका origin क्या है। Once you know the origin of the phrase and then try to connect it, फिर आपको क्लियर होने लगेगा, ऑप्शंस देखकर आप कर पाएंगे, एंड ग्रेजुअली यू कम टू अ स्टेज की 4 में से आपकी 2 ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगी, बाकी 2 में आप लॉजिक लगा सकते हैं, एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन इफ यू स्टार्ट मेकिंग दी सेंटेंसेज ऑफ दीज फ्रेजेस रिलेटेड टू योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, सो देन इट इज ईजी टू लर्न। अगर आप उसको कनेक्ट कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द सेम। थैंक यू वेरी मच माय डियर।